वेलकम गाइस, हाउ डू यू डू। आज मैं आप लोगों के बीच प्रेपोजिशन की चर्चा करने जा रहा हूं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यह चैनल आपके बहुत ही काम आएगा। पूरे वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। ऐसा पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बता सकता दोस्तों, यह मेरा चैलेंज है। तो अब शुरू करते हैं, बिगिनिंग करते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। तो प्रेपोजिशन के बारे में जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि देखो, बहुत से लोग प्रेपोजिशन करेक्ट साउंड है, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है इंडिया में, तो लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। दैट इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप अवॉइड करो ऐसे टीचर को। यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर हैं जो प्रीपोजिशन करके ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स फैला रखा है, तो अवॉइड करिए इसे आप। ये करेक्ट साउंड है प्रेपोजिशन। जो नेक्स्ट मैं आपको एक वीडियो एक फोनेटिक्स के ऊपर भी दूंगा, जो इंग्लिश में 45 कॉन्सोनेंट टुगेदर विथ वोवेल साउंड है, और जो कैसे साउंड निकलता है उसके बारे में भी बताऊंगा। यू नो दैट प्रेपोजिशन इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का यह बैकबोन कहा जाता है। तो प्रेपोजिशन करेक्ट साउंड क्या बोलोगे, जो डायरी लो, नोट करो उसमें प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ये फोनेटिक सिंबल हमने यहाँ दे रखा है। अब देखो कि प्रेपोजिशन क्या है। तो प्रेपोजिशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, प्री प्लस पोजिटम। इस पोजिटम से पोजिशन बना है। यहाँ प्री ये लैटिन वर्ड है, पोजिटम भी लैटिन वर्ड है। प्री मीन्स बिफोर, पोजिटम मीन्स प्लेस। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो मेन जो पोजीशन वह सब्जेक्ट का होता है, इसे हम नाउन भी बोल सकते हैं। सो प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन एंड शोज इट्स रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन कैसे संबंध बतलाता है ये आप देखो। एक सेंटेंस देता हूं, देयर इज ए बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है और यह बुक और टेबल के बीच में रिलेशन बतलाता है। बुक कहाँ है, पोजीशन बतलाता है ऑन द टेबल। टेबल तो ऑन क्या है दोस्तों, यह प्रेपोजिशन है। तो एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर या अपना रिलेशन अदर वर्ड्स के साथ जाहिर करता है, इसलिए इसका नाम है प्रेपोजिशन। ही jumped into the well. You know that jump is a walk and well is an object. So here into denotes relationship between jump and the well. Henceforth it is called preposition. I hope you have already understood. Now I am talking about the different kinds of preposition. You know that preposition is just like a spice on in the food. So without commanding over the preposition, you can't know and go ahead in English literature, even in a spoken English, colloquial English, and written English. So you must understand now preposition is three types. Simple preposition, you can say one word preposition, a, at, in, with, by, for, on, since, up, of, etc. Second is compound preposition, into. It is made up of two preposition, into, within, up, on, among, between, amongst, and so many. Third is phrasal preposition. It functions like the phrasal verb, phrase, on account of
by dint of, in case of, by sake of, by hook or by crook. All these are the phrasal preposition. In lieu of, owing to, on account of, all these are the example of phrasal preposition. So guys, you must jot down, and I am talking about the simple preposition. You know that I am taking a drop of water from the ocean. So preposition has been called the ocean because till now no scholar, polysister of English literature has commanded over preposition. So you have to take care of it. The first preposition is a. Till now you only understand that a is determiner, article, but in modern English it is a preposition also. You know that they are the different use of the word. So a, it gives the meaning of on. I am giving you example. I found him a bed. I found him a bed. You can also say that I found him on a bed. So a is preposition here. यहाँ पर a preposition है. Preposition के different functions होते हैं, आप जानते हैं. Next example, he went a hunting. Same meaning is he went on hunting. So is preposition here. It denotes just like the function of anything where anything exists. Next, it gives the meaning in the sense of par, prati, in you can say in Hindi. He earns 10,000. He earns rupees 10,000 a day. So he earns rupees 10,000 a day. It means प्रति, और प्रति महीने वो प्रतिदिन 10,000 रुपये कमाता है. यह जो प्रति का मीनिंग देता है. He expends 1,000 a month. He expends 1,000 a month. He expends 1,000 a month. You can jot down here rupees also, as you like. Guys, did you understand? Didn't you? Be careful. Now I am talking about die. दोस्तों, ये डाई की जो प्रीपोजिशन है मैंने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. डाई के साथ अगर कोई व्यक्ति, नोट कर लो, अभी कोई नहीं बताएगा, डाई अगर कोई व्यक्ति डिजीज से मरता है, एक्सपायर करता है, तो डाई के साथ हमेशा ऑफ लगता है. ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कोरोना, ही डाइड ऑफ फीवर, एंड सो ऑन, सो दैट you can't say he died on account of fever, he died owing to corona, he died from fever, died with fever. All these are the incorrect expressions. So already you know that die from some cause. Former Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, died from the loss of blood. He died from the truck accident. तो डाई के साथ अभी आपने देखा कि विभिन्न प्रपोजिशन किस अर्थ में आता है. डाई
आउट, इट मीन्स एबोलिश, समाप्त हो जाना। नाउ द सती सिस्टम हैज डाइड आउट फ्रॉम इंडिया। तो ये समाप्त हो जाना किसी सिस्टम का अगर समाप्त हो जाता है तो हम डाई ऑफ बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस डाइड फॉर हिज नेशन, चंद्रशेखर आजाद डाइड फॉर हिज नेशन। अपन किसी देश के लिए अगर हम जो सेक्रीफाइस करते हैं तो उसके लिए डाई के साथ फोर आता है। आप सुनते जाओ, सुनने का समय है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से जो प्रेपोजिशन है बहुत ही है, मतलब यह महासागर के समान है, एक बूंद में ले रहा हूँ। अब ध्यान से देखो कहाँ क्या होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से एग्री है तो एग्री विद अ पर्सन, एग्री टू वंस proposal, agree to one's proposal. I agree with you but I don't agree to your proposal. So you know that different verbs are followed by different words are followed by different type of preposition. Next आप नोट कर लो, बहुत ही जरूरी है। Arrive at a small place, arrive in a country, big place. He arrived in India, he arrived at कानपुर। जानते हो कि इंडिया बड़ा है, कानपुर उससे कंपैरेटिवली छोटा है। तो arrive at, arrive in, क्लियर है। तो इस तरह से देखो क्या क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनना। स्पीक ऑफ, स्पीक ऑन। अगर किसी चीज पर हम ब्रीफली टॉक करते हैं या हम स्पीच देते हैं या बोलते हैं तो स्पीक ऑफ होता है, और स्पीक ऑन होता है एट ए ग्रेट लेंथ। जब हम स्पीच देते हैं किसी चीज पर इन डिटेल हम जो चर्चा करते हैं तो स्पीक ऑन होता है। ही स्पोक ऑन मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब्स के बारे में उन्होंने डिटेल में चर्चा की। स्पीक ऑफ शॉर्टली, आई स्पोक ऑफ शॉर्टली अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर इन माय फर्स्ट वीडियोज। तो दोस्तों ये सब देखो जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन है, कहाँ क्या लगाना है। तो ये प्रेपोजिशन है, जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे बिसाइड है और बिसाइड्स है। बिसाइड मीन्स नियर, इन बाय द साइड ऑफ, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ। आप नियर भी बोल सकते हो। सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो, मेरे बगल में बैठो। बट बिसाइड्स, इन एडिशन टू, आई नीड ए बुक बिसाइड्स पेन्स, मुझे पेन्स के अतिरिक्त अलावा मुझे बुक भी चाहिए। तो बिसाइड्स बाय द साइड, देखा आपने, बाय द साइड ऑफ, नियर, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। दोस्तों ये नोट कर लो, टाइम बहुत कम है, पढ़ाना आपको, आउटपुट ज़्यादा देना है। तो मैंने आपको बताया कि आप ध्यान से सुनो, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आप सुन के कर सकते हो। देखो जो बाय का और विद का कहाँ प्रयोग होता है। बाय और विद, बाय का प्रयोग मोस्टली पैसिव फॉर्म में होता है, और विद डिनोट्स इंस्ट्रूमेंट एंड एसोसिएशन। और एसोसिएशन, आई एम राइटिंग विद अ पेन। सीता वेंट टू फॉरेस्ट विद राम। तो अभी आपने देखा कि विद इंस्ट्रूमेंट और एसोसिएशन भी बतलाता है। बाय
पैसिव फॉर्म में होता है। द टाइगर वॉज किल्ड बाय हैरी विद ए गन। तो देखा विद इंस्ट्रूमेंट है, तो गन इंस्ट्रूमेंट है तो वहां विद लगा। और यहाँ आपने देखा कि बाय किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है पैसिव फॉर्म में। बाय का प्रयोग ऑटोमोबाइल के साथ भी होता है, MOBILE। बाय कार, ही इज कमिंग बाय कार। बाय ऑटो रिक्शा, बाय बस, बाय ट्रेन, सो एंड सो दैट। तो आपने देखा इस तरह से। और भी देखो, बिटवीन एंड अमंग। कहीं कहीं आप अमंगस्ट भी देखते हो, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं क्लियर करता हूँ। बिटवीन का होता है यूज इन द मिडल ऑफ टू, दो व्यक्तियों के बीच में हो। जस्ट लाइक देयर इज कोल्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो आपने बिटवीन का देखा कि दो के बीच में, अमंग मोर देन टू के बीच में होता है। डिवाइड दिस मैंगो अमंग द 3 चिल्ड्रन, तो ये अमंग हुआ। और अमंगस्ट होता है, जैसे बड़े हमारे ग्रामेरियन हैं, फॉलर महोदय हैं, जेसी नेसफील्ड है, उनका कहना है कि जो बाद में कोई वोवेल साउंड आए तो अमंगस्ट का यूज करो। देयर इज नो डिफरेंस अमंगस्ट अस, हम लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो अभी आपने अमंगस्ट का देखा। तो इस तरह से दोस्तों सैकड़ों प्रीपोजिशन है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हमने गाइड किया है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ।